مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں مقدس پطرس کا خط ہے اور اس کا پہلا خط اور اس کے پہلے خط کے پانچویں باب کی ہم 7 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں یوں لکھا ہے کہ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اسی کو تمہاری فکر ہے۔ آج ہم عزیزو بائبل مقدس میں فکر کے بارے میں ہم تھوڑی دیر جانیں گے، غور کریں گے کہ مقدس پطرس جو خداوند یسوع مسیح کا شاگردوں میں سب سے بڑا شاگرد اور جو شیلا شاگرد اور سب سے پہلے چناؤ کیا گیا شاگرد، اور اسی کے ہی سپرد خدا نے کلیسیا کو کیا، اور اس نے کہا کہ کیا تو میری بھیڑوں کو، میرے گلے کو چرائے گا؟ تو مجھے کیسا عزیز رکھتا ہے، تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بہت سی باتیں خداوند نے کی، اور کرتے ہوئے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ خداوند جو تو کہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس نے جو خطوط لکھے، 2 خطوطوں میں اس نے مختلف لوگوں کو، عام لوگوں کو خط لکھے، اور اس خط میں یوں بیان کیا کہ اپنی ساری فکر کو خداوند پر ڈال دو، اس لیے کہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ عزیزو، خدا کی محبت، خدا کا پیار بہت بڑا ہے۔ خدا انسان کے بارے میں فکر مند تھا، اس کی نجات کے لیے، اس کے ٹوٹے ہوئے اس رشتے کے لیے۔ خدا انسان کی بحالی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند تھا، اور خدا نے انسان کی بحالی کے لیے عزیزو اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تعلیم دی، اور جب پہاڑی وائز میں خداوند نے کلام کیا تو متی 7 باب میں 7 آیت میں انسان کی کمزوری، انسان کی تمام ان ضروریات کو دیکھتے ہوئے، ان کی فکروں کو دیکھتے ہوئے اس بات کو کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی لکھا مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ عزیزو، جب انسان خدا کے گھر، خدا کے قدموں میں، خدا کی حضوری میں آتا ہے، تو جب وہ بڑے ایمان کے ساتھ مانگتا ہے تو خدا اس کے لیے سب کچھ ممکن کرتا ہے۔ فکر کرنے سے کچھ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 6 باب اور 6 باب کی جب ہم عزیزو 25ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ وہ بوتے، نہ کاتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اس نے کہا کہ تم فکر کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فکر سے انسان کی زندگی کے اندر مشکلات کے علاوہ، خدا کی دوری کے علاوہ، اور انسان کی زندگی کے اندر بیماری کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اس لیے خداوند ہی عزیزو سب کچھ ممکن کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے
अगर हम 28वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के इनमें किसी की मानिंद मुलव्वस ना था। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर हम 34वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप ही फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। इसलिए उसने कहा अपनी सारी फिक्र जो है मुझ पर डाल दो, इसलिए कि मुझे तुम्हारा ख्याल है। और मुकद्दस पतरस जो है इस बात को बयान करता है कि तू सारी फिक्र उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारा ख्याल है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन कर सकता है। वो जानता है कि तुम्हें किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए अजीजों, हमें अपनी सारी फिक्र को अपने खुदावंद पर डालने की जरूरत है। मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में जब हम फिलिपियों में हम देखते हैं जो उसने खत लिखा 4 बाब, और उसकी 4 बाब की जब हम 6 आयत का मुताला करते हैं तो वहां ये जिक्र है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो तुम्हारे दिलों को यीशु मसीह में, ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज रखेगा। यानी कि वो कहते हैं कि किसी बात की फिक्र ना करो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन करने की कुदरत रखता है। अजीजों, फिक्रें जो होती हैं हमारे ईमान को उलझा देती हैं, हमारे अंदर की शख्सियत के अंदर ऐसी उलझन को पैदा कर देती हैं, उलझा देती हैं, दूर कर देती हैं। हम डावाडोल बन जाते हैं, हमारे डावाडोल ख्याल हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। हम समझते हैं कि पता नहीं खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देना चाहता। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुमने फिक्र नहीं करनी, बल्कि तुमने खुदा के हुजूर अपनी दरख्वास्तों को पेश करना है, दुआ के वसीला से, मिन्नत के वसीला से, तो फिर शुक्रगुजारी के साथ। तो फिर क्या होगा? खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, लिखा है कि वो तुम्हारे दिलों और ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज कर लेगा। यानी बाहर के जो ख्यालात हैं वो तुम्हारे अंदर के ख्यालात के अंदर गड़बड़ पैदा नहीं कर पाएंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी यीशु मसीह में हमेशा अजीजों अच्छी गुजरेगी। और फिर आप आसानी से अबलीस की कुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इंसान के अंदर एक बीमारी जन्म लेती है तो वो बीमारी हमारे अंदर की चीजों को, अंदरूनी चीजों को, सेल को कमजोर कर देती हैं। जब बाहर की कोई बीमारी अंदर आती है तो फिर वो अंदर के जो सेल होते हैं उनकी कमजोरी की वजह से बीमारी हैवी हो जाती है। इसी तरह अजीजों, जब हम अबलीस का मुकाबला करते हैं तो फिर क्या होता है? जब हम अंदर से कमजोर होते हैं तो फिर हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए आज का यह पैगाम है कि हम अपनी सारी फिक्र अपने खुदावंद पर डालते हुए अबलीस का जब मुकाबला करेंगे तो यकीनन अबलीस शिकस्त खाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारे पास जो हथियार हैं वो किलों को ढा देने के काबिल है। फिक्रें तो कुछ भी नहीं है, मुश्किलातें तो कुछ भी नहीं है। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के खत में 8वें बाब में बयान करता है, कौन यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकता है?
मुसीबतें, दुख। अगर हम 8वां बाब देखें, 8वें बाब में ये बड़ी प्यारी बात मुकद्दस पौलुस रसूल अजीज़ो बयान करता है। वो कहता है कि हमें यीशु की मोहब्बत से, 8वां बाब और उसकी अगर हम 34वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। लिखा है, चनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर से जान से मारे जाते हैं, तो हम तो ज़िबा होने वाली भीड़ों के बराबर गिने गए। इसलिए अजीजों वो बयान करता है कि अगर हमारी फिक्रें खुदाबंद पर होगी तो फिर वो क्या करेगा? वो हमारे लिए एक फरिश्ता को मुकर्रर कर देगा जो हमारी मदद कर सकता है। मुकद्दस पतरस जेल में था, तो जब कलीसिया दुआ कर रही थी तो लिखा है कि उस फरिश्ता ने उसे जगाया और वो समझ रहा था कि ख्वाब है, रोया है। लेकिन जब वो बाहर आया, जब उस जगह पहुंचा जहां वो दुआ कर रहे थे, तो एक लौंडी ने आवाज सुनी, भाग कर खिड़की के पास गई, तो उसने खुशी के मारे लिखा है कि दरवाजा न खोला, बल्कि सबको बताया कि पतरस बाहर है। उन्होंने कहा उसका फरिश्ता होगा। अजीजों, जब आपकी फिक्रें खुदावंद पर होगी तो वो आपका ख्याल करेगा, आपकी जरूरतों का ख्याल करेगा, आपके खाने और पीने का, पहनने का, ओढ़ने का ख्याल करेगा, आपकी हर जरूरत का ख्याल करेगा। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत दे और खुदा तौफीक दे कि आप हमेशा खुदावंद पर भरोसा तवक्कुल करते हुए उससे मांगे, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मेहरबान जिंदा खुदा, आज के इस मैसेज के लिए, आज के इस कलाम के लिए जो खुदावंद आपने बख्शा, ये जितनी जाने सुने बरकत पाए और तेरा नाम जलाल पाए। सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दे। तेरा फजल तेरे लोगों पर हमेशा रहे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सलामती अजीजों आप लोगों के हमेशा साथ रहे, आमीन।